वो टीवी था, अब मैं टीवी नहीं करता हूँ। मिस्त्री नाम का एक शो है Amazon में जिसमें मैं हूँ, हॉटस्टार में जिसमें मैं हूँ, और जॉली LLB पार्ट 3 में भी मैं हूँ। ये दोनों चीज देखिए, फिर मैं आपको अगले साल का बताऊंगा। तो टीवी में आप बहुत, मैं अपने आप के लिए भी कर सकता हूँ ना, इसीलिए होता है। चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, टीवी इंडस्ट्री हो, अकाउंटेंट हो, डॉक्टर हो, मुश्किल कुछ नहीं होता, मुश्किल सिर्फ अपना दिमाग होता है। अगर आपको करना है आप करेंगे। जो भी लोग मोटे हैं, अगर वो पतले नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब वो नहीं करना चाहते। अगर वो सच में करना चाहते हैं तो वो कर पाएंगे। सिंपल, मुश्किल कुछ नहीं होता। First kid was within 1 year. Within 1 year. And then I had a gap of 6 years. Were your husband in Punjab? No. Yes, this is how things happen. You have to stay together. You don't know why I live in the I got married 19 years ago. I got divorced 18 years ago. Today. That's true. Yes, no, I don't know. Right there. What's your name? Such a nice thing. We're honored to have so we are honored to have with us a personality who has not only entertained millions but is also a director and Dr. Pani. Yes, please. Sir, look here. We are today on the brink of launching a diabetes clinic, obesity clinic in Gurgaon at FMRI. And we have called various guests. Mr. Ram Kapoor, as you all know, has a remarkable journey of losing more than 25 kgs with his... As an overweight man, even though I was doing lead work in television, I was accepted and loved, which is very good. I will at some point in time, I wanted to teach my son that it's not only about the profession, it's also about personal health. And also, I had failed twice. Twice I had lost 30 kilos through determination and willpower, and they came back because I was not. Calorie deficit for yourself, and you are doing 2 meals a day and no dinner after 6:30 p.m. How are you able to motivate yourself for doing all this? And what made you? Which is not necessarily correct. But none of us know this because himself or herself, or is just not getting in touch with themselves correctly. If you can manage to do these two things, there is no way that you can fail, I feel. One more thing, very interesting, parties, going to various launch events. How are you able to curb your desire to eat food? What helped you there? Once you educate yourself about food, the desire of food goes away forever. Because food is, there are two kinds of people in this world. Just two kinds of people. There are people for which food is more important than health. I was one of them. And there are people for which health is more important than food. Can we have a big round of applause for the transformation journey which FMRI is starting? Ma'am, photo नहीं आ रही आपका हाथ. Yes, please look here, everyone. जैसे कि इन्होंने कहा, एक बीमारी है वो, मोटापे से जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियां हैं। तो मोटापा, हेल्दी रहना, फिट रहना, ये बहुत जरूरी है। आई थिंक आई कैन बी हर्ड दो। मोटापा एक बीमारी है, जैसे सबने कहा, और इम्पोर्टेंटली मोटापे से जुड़ी हुई बहुत सारी दूसरी बीमारियां भी हैं जो आती है अगर आप मोटा हैं। सो मोटापा, हेल्थ, फिटनेस, इस सब पे वी ऑल नीड टू कॉन्सेंट्रेट
मैं अदनान सामी को जानता नहीं हूँ। जी मैं नहीं जानता, मैं कभी उनको मिला नहीं हूँ। अगर आप चाहते तो मैं मिल लूंगा, लेकिन अभी तक नहीं मिल रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ, देखिए मैं अदनान सामी के लिए कैसे बात कर सकता हूँ? मैं उनको जानता नहीं हूँ, कभी मिला नहीं हूँ। दूसरा, उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है, हम में से कोई नहीं जानता, ठीक है? तो आप जो बोल रहे हैं ना, उन्होंने ये नहीं किया वो नहीं किया, ये आप नहीं जानते, मैं नहीं जानता, ठीक है? नहीं, आपने उन्होंने आपको बताया नहीं तो आप नहीं जानते। प्रैक्टिकली कुछ किया है इसके बारे में मैं कोई नहीं होता बात करने का, तो क्यों पूछ रहे हैं आप? मैं राम कपूर नहीं सर, मैं हर कोई अलग होता है, हर किसी की जर्नी अलग होती है, हर किसी का वजन अलग होता है। तो इसमें कोई वी कैन नॉट पुट ए डे, 15 दिन 20 दिन या कुछ भी। किसी को कुछ महीने लगते हैं, किसी को कुछ साल लगते हैं, हर किसी का केस अलग होता है ना। किसी को 20 किलो कमती करनी है, किसी को 60 किलो कमती करने हैं, किसी को डायबिटीज है, किसी को कुछ दूसरी बीमारी है। तो ये देखो, अगर आप इतना सब कुछ कर रहे हैं, जर्नी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो अपने डॉक्टर की सलाह लेकर अगर वो करें तो मेरे हिसाब से वो बेटर है, बिकॉज यू आर इन गुड हैंड्स ना। फिर आप जितना भी टाइम आपको चाहिए आपका डॉक्टर आपको बताएगा, और दैट्स ऑल। कोई एक फॉर्मूला नहीं है, हर कोई अलग है और हर कोई की जर्नी अलग है। एक मोटापा जो है, जैसे आप सब लोगों को पता है, एक बीमारी है और हर पेशेंट को एक इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच इस हॉस्पिटल में दी जाएगी। हर एक की मोटापे की प्रॉब्लम अलग है, हर एक का डिग्री ऑफ ओबेसिटी अलग है, हर एक का बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स जो है BMR, बेसल मेटाबॉलिक इंडेक्स BMI जो है वो फ़र्क है। तो एक इंडिविजुअल पेशेंट के हिसाब से क्या उसको सिर्फ एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की ज़रूरत है, क्या उसको बिहेवियरल थेरेपी की ज़रूरत है, क्या उसको मेडिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत है, या क्या वो एक्सट्रीम है और उसको सर्जरी की ज़रूरत है, ये सारा प्रॉपर आधुनिक तकनीकों से उसको असेस किया जाएगा और पेशेंट्स को उसके हिसाब से मैनेज किया जाएगा। सर क्या कुछ डिफरेंट है, हर अप्रोच का खर्चा जो है वो अलग अलग होगा। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज आने के लिए। आज हमने अपने यहाँ पे हॉस्पिटल में, फोर्टिस हॉस्पिटल गुड़गांव ओबेसिटी क्लिनिक लॉन्च किया है। इस क्लिनिक का लॉन्च करने का उद्देश्य एक ही था कि ओबेसिटी को कैसे कंट्रोल किया जाए। देयर आर स्टैटिस्टिक्स व्हिच सजेस्ट दैट ओबेसिटी बहुत एक गंभीर समस्या हो रही है, तो इसको हमने सोचा कि इसको सही तरीके से कैसे एड्रेस किया जाए। तो आज इस क्लिनिक का लॉन्च हुआ है, जो कि डॉक्टर सतीश कौल और डॉक्टर अमित जावेद दोनों की टीम ने मिलके इसको पूरे प्रोग्राम को कॉन्सेप्टलाइज किया है। और इस क्लिनिक के थ्रू जितने भी ओबीज जो पेशेंट्स आएंगे हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल में, उनका इलाज एक साइंटिफिक तरीके से होगा। बाकी जो भी जानकारी आपको इसमें और डिटेल चाहिए साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ, वो हमारे दोनों स्पेशलिस्ट आपसे बात करेंगे। मोटापा यानी ओबेसिटी को पहले ही डिजीज क्लासिफिकेशन में लाया जा चुका है। ये हमें सबसे पहले तो ये जानकारी लोगों तक जानी चाहिए। पहले हम सोचते थे कि मोटापा एक लाइफस्टाइल डिजीज है, लेजी मैन सिंड्रोम कहा जाता था, बट ऐसा नहीं है। मोटापा इटसेल्फ इज अ डिजीज, ओबेसिटी इज अ डिजीज, ये क्लासिफाई हो चुका है। तो इसको जानते हुए, इसके बड़े जो रेमिफिकेशंस हैं, इसको जानते हुए हमने एक कॉम्प्रहेंसिव ओबेसिटी क्लिनिक खोलने का प्रयास किया है। और इसमें हमारी मल्टीपल स्पेशलिटी टीम्स इन्वॉल्व हैं, क्योंकि जो लोग ओबीज होते हैं, जिनका BMI भारतीय स्टैंडर्ड के हिसाब से ज़्यादा है, उनको घुटनों की तकलीफें, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, सांस की दिक्कतें, उनको डायबिटीज़, उनको हार्ट की तकलीफें, ये सब चीज़ें समझते हुए हमने एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच लगाने की कोशिश की है इस कॉम्प्रहेंसिव ओबेसिटी क्लिनिक पे। और हमने काफ़ी क्लिनिशियंस को इन्वॉल्व किया है। ये सारा जो क्लिनिक है, ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पे आधारित होगा, यानी कि जो प्रमाण हमारे पास साइंटिफिक प्रमाण है उनके ऊपर आधारित होगा। और इसमें जो कॉस्ट की बात आप में से एक ने पूछी, तो कॉस्ट इंडिविजुअलाइज करके की जाती है। जैसे कि डॉक्टर अमित ने भी बताया कि बिहेवियरल थेरेपी लगेगी, किसी पेशेंट को डाइट मॉडिफिकेशन से कम होगा, किसी को दवाइयों की जरूरत है और किसी को सर्जरी की जरूरत है। ये सब डिपेंड करता है पेशेंट को इंडिविजुअलाइज जब आप करते हैं। तो ये सब करने के लिए हमने एक पूरा डेडिकेटेड क्लिनिक खोला है। डेडिकेटेड क्लिनिशियंस इन्वॉल्व हैं, सर्जन इन्वॉल्व हैं, कार्डियोलॉजिस्ट इन्वॉल्व हैं, बहुत लोग इन्वॉल्व हैं। पूरा कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन होगा पेशेंट में। उस पेशेंट के लिए जो उचित इलाज है
जिस तरह से भी हम उसका इलाज कर पाएंगे, उसकी मदद कर पाएंगे, ये हम देखेंगे। और हमारे अभी आपने देखा होगा काफी पैनलिस्ट ने ये भी बताया कि डायबिटीज जो ओबेसिटी है, डायबिटीज के साथ भी इसका जुड़ाव है, हार्ट की तकलीफों के साथ भी इसका जुड़ाव है। ये भी देखा गया कि ओबेसिटी बार बार आती है, इट्स रिलैप्सिंग डिजीज। उसको कैसे मेंटेन, जो किसी ने वजन कम कर लिया उसको मेंटेन कैसे करना है, उसके लिए कैसे साइकोथेरेपिस्ट को इन्वॉल्व करना है, बिहेवियरल साइंटिस्ट को इन्वॉल्व करना है, डाइटिशियन को इन्वॉल्व करना है, ये भी इस कॉम्प्रिहेंसिव ओबेसिटी क्लिनिक का पार्ट है। कौन से पेशेंट सर्जरी के लिए जाएंगे, डॉक्टर जावेद की टीम के लिए जाएंगे, कौन से पेशेंट सर्जरी के लिए फिट हैं, वो कार्डियोलॉजिस्ट क्लियरेंस होगी, वो सब कुछ इस ओबेसिटी क्लिनिक में देखा जाएगा। और हम आशा करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, ये समझें कि ओबेसिटी अब एक बीमारी है, ओबेसिटी इज ए डिजीज, और इसका इस क्लिनिक का फायदा उठाएं। ये अंडर वन रूफ हमने सब कुछ लाने की कोशिश की है। अब इसकी सफलता इसका प्रचार पे निर्भर करता है, कितने लोगों को पता लगता है कि ये जो लोग डिनाइल में है कि ओबेसिटी बीमारी नहीं है, ये लाइफस्टाइल डिजीज है, इससे बाहर निकलें, इस भ्रम से बाहर निकलें कि ओबेसिटी बीमारी है। इसको समझें कि ओबेसिटी बीमारी है और इसका एक बीमारी की तरह ही मल्टी स्पेशलिटी इलाज होना चाहिए।